شاہ ہاؤس۔ منو اور حنان کی منگنی کو 15 دن گزر گئے تھے۔ اس دوران منو حنان کے سامنے آنے سے بھی شرماتی تھی، جو کہ ایشی مشی دیکھ کر حیران تھی۔ اب گھر میں ہمدان کی منگنی کو لے کر سب بڑے میٹنگ میں مصروف رہتے تھے، جبکہ ایشی کو لگتا تھا کہ سارا آنے والی ہے۔ ہمدان بیٹا، ارے ماما وہاں کیوں کھڑی ہیں، آپ اندر آئے نا۔ صبح صبح ناشتے کے بعد ایشی مشی کالج چلی گئی اور حنان ایمان بھی کلب پریکٹس کرنے چلے گئے تو زری کچن رشی اور ہما کے حوالے کر کے ہمدان کے کمرے میں آئی، جہاں وہ لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کرنے میں مصروف تھا۔ زری نے دروازہ نوک کر کے ہمدان کو بلایا تو ہمدان نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھتا بولا۔ زری اندر آئی تو ہمدان نے بیڈ پہ بیٹھنے کی جگہ دی، پھر اس کا ہاتھ چوم کے گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا تو زری مسکرانے لگی اور آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ ہمدان کے بالوں میں پھیرنے لگی۔ ہمدان نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ دانی بچے، بات کرنی ہے تم سے۔ کچھ دیر بعد ہاتھ روک کے زری بولی تو ہمدان نے آنکھیں کھول کے ماں کا چہرہ دیکھا اور پھر پوچھا، کیا بات؟ دیکھو بیٹا، تم نے مجھے بتایا کہ ہانی اور منو پسند کرتے ہیں، تو میں دونوں کا نام آئے بغیر ان کی منگنی کرانے میں تمہاری مدد کروں، جو میں نے کی۔ اب تم بڑے ہو اور سب چاہتے ہیں تمہاری بھی منگنی کر دی جائے، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ۔ زری تفصیل سے بولی تو ہمدان اٹھ کر بیٹھ گیا اور سنجیدگی سے ماں کو دیکھنے لگا۔ ایک پل کو ایشی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، مگر اگلے پل یہ سوچ کے دل دکھا کہ ایشی کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے اور ہمدان اتنا سیلفش نہیں ہو سکتا کہ اپنی خوشی کی خاطر اس کی خوشی مار دے۔ نہیں ماما، آپ جہاں کرنا چاہیں کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہمدان مسکرا کے بولا تو زری نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا تم ایشی کو پسند نہیں کرتے؟ زری نے براہ راست سوال کیا تو ہمدان گڑبڑا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ماما، وہ کسی اور کو لائک کرتی ہے شاید، سو آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں پلیز، ہمدان منت سے بولا تو زری کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے سر پر بوسہ دے کے خوش رہنے کی دعا دیتی باہر نکل گئی۔ ہمدان نے گہرا سانس لیا اور دوبارہ لیپ ٹاپ پہ لگ گیا۔ شاہ جلدی کر دیں کال آ رہی ہے۔ رشی کپڑے طے کر کے الماری میں رکھ رہی تھی جب شاہزیب کا موبائل تیسری بار بجا تو رشی کپڑے چھوڑ کے واش روم کے دروازے کے پاس آ کے بولی۔ شاہزیب ابھی دوپہر کو واپس آیا تھا اور زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے شاور لینے چلا گیا، تب اس کا موبائل بج کے پاگل ہو رہا تھا۔ اف شاہ، موبائل بج کے بند ہوا تو رشی دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی، مگر تب ہی چوتھی بار کال آنے لگی تو رشی کپڑے صوفے پہ رکھتی کوفت سے بولی اور بیڈ کے پاس آئی، جہاں موبائل کے اسپیکر گلا پھاڑ کے بج رہا تھا۔ موبائل اٹھاتے ہی رشی نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسکرین کو دیکھا، مگر اگلی ہی لمح اس کا پارا ہائی ہو گیا کیونکہ اسکرین پہ سمی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ رشی نے زور سے موبائل بیڈ پہ پھینکا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ شاہ جیسے ہی شاور لے کے باہر نکلا، رشی نے صوفے پہ پڑے کشن اس پہ برسانے شروع کر دیے۔ اس اچانک آفت کے لیے وہ تیار نہ تھا، سو ادھر ادھر ہو کے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ جب ایک کشن سیدھا جا کے ناک پہ لگا، وہ شاہ دونوں ہاتھ ناک پہ رکھے چیخا، کیا ہو گیا ہے، کچھ بتاؤ گی بھی؟ جب صوفے سے کشن ختم ہوئے اور رشی بیڈ کی جانب بڑھی تو شاہ نے فوراً راستہ روک کے پوچھا، ابھی بتاتی ہوں، شرم تو آتی نہیں ہے تمہیں، 3 جوان بچوں کے باپ ہو گئے ہو، مگر حرکتیں چیک کرو اپنی، توبہ توبہ۔ رشی دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے چیخ کر بولی تو بیچارہ شاہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اب کیا کر دیا اس نے، ہوا کیا ہے؟ رشی نے جب بیڈ سے تکیے اٹھا کے مارا تو اس کو کیچ کرتے شاہ جھجلا کے بولا، یہ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا ہے، جیسے تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ترے بھی ننھے کاکے نہ بنو۔ رشی الماری سے بیگ نکالتے ہوئے بولی تو شاہ گھبرا گیا، تبھی دروازہ کھول کے اندر آتا ایمان بھی رک کے اپنے نمونے ماں باپ کو دیکھنے لگا، جو آج جیت کے آنے کی خوشی سب سے پہلے اپنی ماں کو سنانا چاہتا تھا اور میڈل بھی دکھانا چاہتا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو رشی، کہاں جا رہی ہو تم؟ دیکھو ایسا مت کرو، مجھے بتاؤ تو۔ رشی کو الماری سے کپڑے نکالتے دیکھ کے شاہ پریشانی سے بولا۔ اس کی آواز سن کے ایشی مشی بھی وہاں آ گئی، جو ابھی کالج سے واپس آئی تھی۔ ہائے دیکھو ایشی، ماما پاپا لڑ رہے ہیں۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے مشی نے خوشی سے ایشی کے کان میں کہا، ہاں کیوٹ، مزے کا ہے، بس ہم لیٹ ہو گئے۔ ایشی بھی فرش پہ پڑے کشن دیکھ کے بولی تو ایمان نے گھور کر دونوں کو دیکھا، میں کہیں نہیں جا رہی، بلکہ تم جاؤ گے یہاں سے، یہ گھر نکاح نامے پہ میرے نام ہے، اور پکڑو اپنی چیزیں، چلو نکلو باہر اب۔
ऋषि अलमारी से शाहजेब के सारे कपड़े निकाल के बैग में पटकते हुए बोली तो शाह ने आंखें फाड़ के उसे देखा। तब ही ऋषि इसके परफ्यूम्स और बाकी चीजें बैग में पटक के बोली और इशी मिशी मजीद तजस्सुस से देखने लगी। यार मामा क्या हो गया है बताएं भी, सारा मोहल्ला आप दोनों को सुन रहा है। बाप को बुद्ध बना देख के ईमान बेजारी से बोला तो ऋषि ने दरवाजे में खड़े अपने तीनों बच्चों को देखा, फिर घसीट के बैग दरवाजे से बाहर रखा और सबको कमरे से निकाल के ठा की आवाज से दरवाजा बंद कर दिया। शोर की आवाज सुन के बाकी घर वाले भी वहां इकट्ठे हो गए और सवालिया नजरों से शाह को देखने लगे जो खुद हैरान सा खड़ा था। अरे छोटी बहन हमें तो अंदर बुला लो, अकेले किस किस का मुकाबला करोगी, हमारी जरूरत पड़ेगी। इसी दरवाजे के साथ मुंह लगा के बोली तो ऋषि ने अंदर से किशन बंद दरवाजे पे मारा तो इशी एकदम उछल के पीछे हुई और बुरे बुरे मुंह बना के दरवाजे को देखने लगी। शाह बेटा हुआ क्या है? एहरार साहब से शाहजेब से पूछा तो उसने कंधे झुका दिया और फिर शावर और काल वाली स्टोरी से लेकर कमरे से बाहर निकलने तक सब बता दिया तो रिया ने सर पकड़ लिया। इशी ये जो शब हम लोगों से पूछते थे कि किस पे गई हो, इनकी लिस्ट बना लो, कल सबको पकड़ के बताएंगे कि अपनी छोटी बहन पे गए हैं हम लोग। शाहजेब की सारी बात सुनकर पानी पीती मिशी आंखें घुमा घुमा कर बोली तो इशी भी गुड आइडिया कहती सर हिलाने लगी, जबकि शाहजेब ने बेचकारगी से आसमान की तरफ देखा और अगर इन लोगों ने पूछ लिया कि तुम हिकली हो, ये किस पे गई हो, तो बताना निक्कड़ वाले चाचे शीमे पे जरार के इसकी तो बताना कि नुक्कड़ वाले चाचे शीमे पे। राम ने उसकी नकल उतारे अपने टाउन की कोने वाले पापे का नाम लिया जिसका नाम नसीम था, मगर सब इन्हें सीमे कहते थे और वो भी हिकलाते थे। चुप कर जाओ जरार के बच्चे, मड़मड़ा मत जाना मेरे हाथों। मुंह में सैंडविच डालते मिशी बाजू पीछे करके बोली तो सब ने हंसी दबाई, जबकि हमदान ने इन दोनों को खामोश करवाया और एहरार साहब ऋषि से दरवाजा खुलवाने लगे। बेटा क्या हुआ है? ऋषि ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एहरार साहब इसके सर पे हाथ रखकर बोले तो ऋषि इनके गले लगकर रोने लगी। बताओ तो ऋषि बच्चे हुआ क्या है? इसको रोता देख के सब परेशान हो गए, जबकि इशी मिशी अपनी माँ को रोते देख के रोती शक्ल बनाने लगी। जब आसिफ ने आगे बढ़कर ऋषि के सर पे हाथ रख के बोला, वो ऋषि को अपनी छोटी बहन समझता था। भाई शाह का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ऋषि दुपट्टे से आंसू साफ करके बोली तो सबने झटके से मुड़कर शाह को देखा जो ऋषि की बात सुनकर ही पत्थर का हो गया था। नहीं, शाह बस इतना ही बोला मगर सब कुछ मशकूक नजरों से अपनी तरफ देखकर चुप हो गया। यार पापा, एक छोटी बहन ही हमारी जिंदगी में कम है जो आप एक और लाने वाले हैं। इसी मसनूई आंसू साफ करती बोली तो सबने इस ड्रामा क्वीन को देखा। और पापा प्लीज ऐसी माँ लाइएगा जो रात 2 बजे भी मुझे बिरयानी बना कर दे रायता बोतल के साथ। मिशी जबान होठों पे फेरती बोली तो शाह ने सर पकड़ा। यहाँ वो मुजरिम बनकर कटोरे में खड़ा था मगर इसकी लाडलियाँ की फरमाइशें ही खत्म नहीं हो रही थी। बताओ शाह क्या ये सच है? आजिम ने शाह से पूछा तो वो नाम में सर हिलाने लगा। झूठ बोल रहे हैं, अब भी मैंने खुद देखा है, सिमी नाम की चुड़ैल की कॉल आ रही थी तुम्हें। ऋषि चीख के बोली तो बाकी सब खामोश रहे, जबकि आरिफ ने जोरदार कहका लगाया और आजिम भी इधर उधर देख के हंसी रोकने लगा। और बेचारा शाह दोनों हाथ सर पर रख के पास पड़ी कुर्सी पे बैठ गया। वो सिमी चुड़ैल नहीं जिन है, मतलब शाह के दोस्त का नाम सिमी है, वो औरत नहीं मर्द है। जब आरिफ भी हंसी रुकी तो सब इसकी तरफ देख रहे थे तो आरिफ ने सफाई दी, बाकी सब भी हंसने लगे तो ऋषि जी भर के शर्मिंदा हुई और लब काटते हुए ऐसा तो शाह को देखा तो लहू आंखों से उसे ही घूर रहा था। हाँ तो मुझे क्या पता, और कौन पागल लड़कियों जैसा नाम रखता है। बेचारे अपनी गलती मांगने के ऋषि बोली तो सब हंसने लगे, जबकि शाह का बस नहीं चल रहा था अपनी नमूनी को कहीं गायब कर दे। वाह समी, नाइस नेम। इशी मिशी तालियां मारते हंस के बोली तो सब ने हंसी छुपाई। या अल्लाह, कौन से गुनाह की सजा है ये सारे नमूने। शाह आसमान की तरफ देख के बेबसी से बोला, फिर घर से बाहर निकल गया।
रिया ने दुख से अपने बेचारे भांजे को देखा। बाकी सब भी हंसी छुपाते खिसक गए। ऋषि भी लब चबाती कमरे में चली गई, जबकि इशी मिशी अभी तक हंस रही थी। ईमान ने अफसोस से अपने भूत बंगले को देखा और बिना अपनी जीत का किसी को बताए घर से चला गया। बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो प्लीज। नाज़नीन जैसे ही पार्क में दाखिल हुई तो उसे किसी लड़की के शोर की आवाज आई। दोपहर के टाइम पार्क में रश कम था। नाज़नीन कॉलेज से वापस आई और कुछ देर बाद ही मौसम अच्छा होने की वजह से पार्क में आ गई। वो जल्दी से उस तरफ बढ़ी जहां से शोर की आवाज आ रही थी। सामने देखती नाज़नीन ने गुस्से से आंखें छोटी की, क्योंकि दो लड़के एक लड़की से पर्स छीनने की कोशिश कर रहे थे, जो मदद के लिए रोते हुए चिल्ला रही थी। नाज़नीन ने बाजू फोल्ड किए और पाँव पटकती हुई इनकी तरफ बढ़ी। एक ही बहन होने की वजह से नाज़नीन काफी लाड से पली थी। उसे फाइटिंग कोर्स का बहुत शौक था, जो उसने हाजिक से किया था, और अब किसी की भी अच्छी खासी धुलाई कर सकती थी। बीच में जाते ही उसने लड़की से पर्स लिया और लोहे की चेन निकाल के पर्स लड़की की तरफ फेंक दिया। चेन से दोनों लड़कों की पिटाई शुरू कर दी, जो उसे लड़की समझ के हंस रहे थे, मगर वो पूरी आफत की तरह टूट पड़ी थी। लड़की को कमजोर समझते हो? अभी बताती हूँ। मार मार के चेन टूट गई तो उसने एक तरफ फेंकते नीचे पड़े दोनों लड़कों को मुक्कों और लातों से मारना शुरू कर दिया। वो लड़की मुंह पे हाथ रखे उसे देख रही थी। जाओ बेटा, हानी देखो ईमान कहाँ है, उसने कुछ खाया भी नहीं, भूखा चला गया बेचारा। सलाद काटते जरी ने हनान से कहा तो जो पानी पी रहा था। पानी पी के वो जी अच्छा कहता बाहर चला गया। जानता था ईमान उसे कहाँ मिलेगा। पार्क में दाखिल होती ही ईमान की नजर दो लड़कों पे पड़ी, जिन्हें कोई लड़की बुरे तरीके से मार रही थी। दोनों का मुंह खून से भरा हुआ था और हाथ जोड़ जोड़ के लड़की से माफी मांग रहे थे। किसी डॉन की औलाद, छोड़ दो इन्हें, ये क्या गुंडागर्दी मचा रखी है, ये पार्क है तुम्हारा अड्डा नहीं। ईमान जो घर से गुस्से में निकला था, यहाँ आते ही उसे गुस्सा निकालने का मौका मिल गया था। उसके गुस्से से बोलने पे आसपास खड़े इकट्ठे होते लोगों ने दिलचस्पी से उसे देखा था, जबकि मारने वाली के हाथ भी कुछ पल के लिए रुके थे। तुम? नाज़नीन जैसे ही पीछे मुड़ी ईमान को देख के गुस्से से बोली, जबकि ईमान का हाल भी इससे मुख्तलिफ ना था। अब लोग मजीद दिलचस्पी से इन दोनों को देख रहे थे। मौके का फायदा उठाते हुए दोनों लड़के बगैर जूतों के वहां से भाग गए। तुम क्या हर जगह अपनी मलकियत समझती हो, जो आते जाते किसी को भी बातें सुना देती हो या मारना शुरू कर देती हो? नहीं मतलब क्या खुद को तुम 30 मार खां समझती हो? नाज़नीन उसे गुस्से से घूर रही थी जब ईमान गुस्से से बोला। मुन्नो की मंगनी के बाद इनकी मुलाकात आज हुई थी और ईमान को मौका मिल गया था अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। नहीं, तुम्हारी जगह है जो हर जगह मुंह उठा कर पहुंच जाते हो। ओ मिस्टर, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं करते? एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरा पीछा करते हुए आते हो तो हर जगह तो बाज आ जाओ, वरना छुट्टी का दूध याद करवा दूंगी मार मार के। ऐसा बर्था बनाऊंगी ना कि क़यामत तक याद रखोगे। नाज़नीन फिर पहले गुस्से से बोली, फिर एक हाथ कमर पे रखे दांत पीसती धमकी देने वाले अंदाज में बोली तो ईमान ने मुट्ठियां भींची। ये लड़की हमेशा इसका बीपी हाई करती थी। मान क्या हुआ? हनान जैसे ही पार्क में दाखिल हुआ तो सामने लोगों को जमा देखा उसे परेशानी हुई, और जैसे ही आगे आया ईमान को लड़ते हुए देख के भागते हुए पास आया और इसके कंधे पे हाथ रख के बोला, कुछ नहीं ये, हाँ लेके जाओ इस सैको को, खां किसी दिन हड्डियां तोड़वा लेगा। अभी ईमान बोलने ही वाला था कि नाज़नीन हाथ झाड़ते आंखें फेर के बोली तो हनान ने हैरानगी से देखा। ओ तुम तोड़ोगी मेरी हड्डियां, हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। हनान से बाजू छुड़वाते ईमान गुस्से से बोला तो नाज़नीन ने भी बाजू फोल्ड किए। छोड़ यार मान, लड़की है ऐसी नहीं करते। हनान उसे बाजू से पकड़ कर ले जाते हुए बोला, हाँ जाओ, मैं बच्चों को माफ कर देती हूँ। नाज़नीन गर्दन इकड़ा कर बोली तो ईमान ने हनान से बाजू छुड़ाया और गुस्से से इसके पास आया। आज के बाद कोशिश करना मेरे सामने मत आओ, वरना तुम्हारा कीमा बना के चील कौवों को खिला दूंगा। अभी ईमान नाज़नीन तक पहुंचा नहीं था कि मामा संगीन होते देख के दो लड़कों ने ईमान को दरमियान में ही पकड़ लिया और वापस ले जाने लगे। जब ईमान इनकी पकड़ में मचलता हुआ बोला तो नाज़नीन ने जबान दिखा के उसे मजीद चिढ़ाया और आंखें फेरते हुए जाने का इशारा किया। अब पार्क के बाहर बोर्ड
लगवाऊंगी, जंगली भैंसे मना है। नाज़नीनी हाँक लगा कर बोली तो ईमान ने खुरखा नजरों से उसे देखा। हाँ देखना, सबसे पहले तुम्हारा आना ही मना होगा। ईमान ने भी दांत पीस के कहा और नान के साथ पार्क से निकल गया। चलो चल भी नाज़नीनी, आज तो बहुत एंजॉय हो गया, थक भी गई हूँ, चल के सोते हैं घर। ईमान के जाते ही बाकी लोग भी ऐसे ऐसे इस पागल को देखते वहां से चले गए। तो नाज़नीनी ने दोनों हाथ आगे करके इनकी उंगलियां आपस में फंसा के कड़का के निकालते हुए कहा, फिर हंसते हुए घर की तरफ चली गई। हाय कितना अच्छा मौसम है। खाना खाने के बाद मिशी मौसम अच्छा देख के छत पे आ गई थी। ईमान तो आते ही कमरे में बंद हो गया था, जबकि बाकी सब भी अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। तो मिशी छत पे दोनों बाजू फैला के खुशी से बोली, हाय नहीं कहते, किसी चीज को नजर लग जाती है फिर वो चीज जल्दी खत्म हो जाती है। जरार भी चाय का कप लिए इसके पीछे छत पे आते बोला। तो मिशी ने आंखें छोटी करके उसे देखा। हाय जरार। मिशी दोनों हाथों का प्याला बना के इस पे मुंह रख के जरार को देखते हुए बोली। तो जरार ने नासमझी से उसे देखा। क्या? जरार ने मुसलसल अपनी तरफ उसको तकते पाकर पूछा। हाय जरार। मिशी कुछ और बोलने के बजाय दोबारा ऐसे ही बोली और जरार नासमझी से उसे देखने लगा। अबे रुक तो। जब जरार को बात समझ आई तो वो चाय का कप वहीं रख के मिशी के पीछे भागा, जो हंसते हुए पहले ही सीढ़ियों तक पहुंच गई थी। मिशी हंसते हुए भाग रही थी, जबकि जरार भी इसके पीछे पीछे भाग रहा था। आखिर कमरे में जाते ही मिशी ने लॉक लगा दिया। तो जरार ने दांत पीस के दरवाजे पे हाथ मारा, फिर खुद ही अपना हाथ दबाता हुआ वापस मुड़ गया। दानी भाई वो इसी किसी काम से हमदान के कमरे में बिना नॉक किए दाखिल हुई और कुछ बोलते हुए सामने देखा, मगर दोबारा पलकें झपकाना भूल गई। हमदान भी इसको देख के बुत बन गया और दरवाजा लॉक ना करने पे खुद को कोसा। दानी भाई ये आप ही हैं ना? इसी दोनों हाथ गालों पे रखे खुशी से चीख के बोली। तो हमदान ने इसको पकड़ के दे अंदर करते फौरन दरवाजा बंद किया। ऐसा बोलो, सबको क्यों सुना रही हो? हमदान इसके ऊंचा बोलने पे बोला, मगर इसी को होश ही कहा था। वो तो हमदान को आर्मी यूनिफॉर्म में देख के बावली हो रही थी। ये किसका है? इसी आस्था से इसके बाजू से यूनिफॉर्म को पकड़ कर खुशी से बोली। तो हमदान ने सर पकड़ा। हमसायों का है। हमदान चिढ़कर बोला, ओ तो आपने क्यों पहना और आपको मिला कहाँ से? इसी मासूमियत से बोली। हमदान दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसा कर झुंझला गया। इसी मेरी बात सुनो, तुमने ये किसी को नहीं बताओगी। हमदान ने नरम लहजे में उसे वार्न किया। क्यों, आपने यूनिफॉर्म चोरी किया है क्या? इसी इसके आसपास घूमती जायजा ले रही थी। जब हमदान ने कहा तो इसी आंखें बड़ी करती उसके सामने आकर बोली, उफ़ो नहीं पागल, ये मेरा ही है। हमदान माथा पेट कर बोला। तो इसी ने मजीद हैरत से उसे देखा। देखो, मैं घर में सबको सरप्राइज देना चाहता था कैप्टन बन के, और जब मैं तुर्की टूर का कह के गया था 6 महीने के लिए, वो मैं तुर्की नहीं गया था बल्कि आर्मी के ट्रेनिंग के लिए गया था, और अब फाइनल मैं कैप्टन बन गया हूँ। और कुछ दिन बाद एक तकरीब है जिसकी बाद मैं सबको सरप्राइज दूंगा। हमदान इसी को तफसील बता रहा था, जो मुंह खोले पूरी आंखें फैलाए उसे देख रही थी। कौन कौन जानता है ये? इसी सत्ते से निकली तो आस्था से बोली, मैं, पापा और शाह चाचू। हमदान बेचारगी से बोला। तो इसी ने आंखें सुखड़ा कर नाक चढ़ाते उसे देखा। अच्छा ना, अब ऐसे मत घूरो और प्लीज मेरा सरप्राइज ही रहने देना, किसी को मत बताना। हमदान हार मारते हुए बोला, अच्छा एक शर्त पे, आप यूनिफॉर्म मुझे देंगे कॉलेज की फर्स्ट पार्टी पे। इसी जबान होठों पे रख के बोली। तो हमदान ने उसे घूरा। नहीं तो मैं सबको बताती हूँ, दानी भाई हीरो बन गए हैं। इसी बोल के जाने लगी तो हमदान ने एकदम उसे रोका और वादा किया कि वो उसे यूनिफॉर्म देगा अगर उसने मुंह बंद रखा। ओके डन, इसी ने खुशी से कहा और बाहर भाग गई। हमदान को यकीन तो नहीं था कि वो मुंह बंद रखेगी, मगर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। पागल, हमदान ने सर नफी में हिलाकर कहा और अपनी चीजें पैक करने लगा। फिर कपड़े लेके चेंज करने चला गया। यूनिफॉर्म सिर्फ उसने चेक करने के लिए पहना था, और इसी मैडम जो बात करने आई थी वो किए बिना ही वापस चली गई थी।
शाह हाउस। अस्सलाम वालेकुम। हमदान सुबह सुबह तैयार होकर नाश्ते की टेबल पे आया और सबको सलाम किया। जहाँ घर के तमाम अफराद नाश्ता करने में मसरूफ थे, जबकि ऋषि, जरी और हुमा नाश्ता बनाने के साथ साथ सबको पेश भी कर रही थी। ये इनके घर का मामूल था। वो तीनों बाद में इकट्ठे नाश्ता करती थी। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा, नाश्ता तैयार है। सब ने सलाम का जवाब दिया और ऋषि, जो इशी मिशी के सामने नाश्ता रख रही थी, मुस्कुरा कर बोली, नहीं यानी मैं लेट हो रहा हूँ, एक ज़रूरी काम है, वहाँ ही कर लूँगा। हमदान ने घड़ी देखते इनकार किया। उसने जरी को बता दिया था कि वो जॉब के इंटरव्यू के सिलसिले में 4-5 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा है, इसीलिए उस वक्त वो अपने सफरी बैग के साथ मौजूद था। हाँ, मुझे भी एक दोस्त से मिलना है। हमदान बेटा, मुझे भी ले चलो। हमदान का इशारा समझती शाह नाश्ता मुकम्मल करके हाथ साफ करते हुए बोला तो इशी ने खिसकानी सी होकर दोनों को घूरा। बड़े ही ड्रामेबाज हैं, कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं मेरे घर के मासूम मासूम लोगों को। आंखें छोटी करके उनको घूरते हुए उसने दिल में सोचा, जान जाए बड़े पापा, आपका कोई दोस्त भी आपका वेट कर रहा होगा। आखिर इन दोनों को उठता देख के से रहा ना गया तो मुस्कुराते हुए आसिफ को देखकर बोली, जो सुकून से नाश्ता कर रहा था मगर इशी की बात सुनकर हड़बड़ा गया। तभी हमदान ने इशी को घूर के देखा तो इशी को अपना वादा याद आया और वो जबान दांतों तले दबा गई। क्या मतलब? एहरार साहब ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देख के पूछा। बाकी सब भी इशी को देखने लगे तो उसने गला तर्क किया, हम कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, ही। मासूम शक्ल बना के मुस्कुराते हुए कहा तो सब ने नफी में सर हिलाया। आपको तो पता है इसका एयर पोर्शन खाली है। हैरान साहब को मशकूक नजरों से अपनी तरफ देखते पाके हमदान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सफाई पेश की, हाँ हाँ हाँ, अब तो आपको सब पागल ही लगेंगे। अब आप एक मुहाफिज बन गए हैं। इनडायरेक्टली इसको पागल कहने पर इसी तब गई और चबा चबा के बोली, मगर दोबारा हमदान के घूरने पर उसने सब की तरफ देखा जो एक बार फिर अपना नाश्ता छोड़ के इसकी बात समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि शाह कनपटियां मसलते हुए हमदान को देख रहा था। ये क्या बोल रही है हो इशी तुम आज? अब की बार रिया को भी कुछ गड़बड़ लगी तो उसने इशी से सवाल पूछा, जो लब चबाती अपने खरफाती दिमाग को चलाकर कोई प्लान सोच रही थी। कुछ नहीं फजूल। हमदान ने सबको देखते हुए कुछ कहना चाहा जब इशी फौरन से इसकी बात काट कर बोली, हाँ, तो क्या हम सबको सपोर्ट करना हो या कोई भी काम हो तो क्या हमदान भाई हमारे हेल्पर नहीं बनते? इसी तरह कॉलेज छोड़ना, वापस लाना, खाने पे लेके जाना से शॉपिंग तक सब इन्हीं की तो जिम्मेदारी है। तो इस तरह हुए ना ये मुहाफिज हमारे। सोच के इशी ने जुगाड़ लगाया तो सबको इशी की दिमागी हालत पर शक हुआ कि आज इशी को हमदान का इतना ख्याल कैसे आ गया, जबकि इशा अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए हमदान को देख रहा था, जिसकी शक्ल देख के लग रहा था अभी रो देगा, और वो बेबसी से इशी को देख रहा था जिसे कह रहा हो, अल्लाह का वास्ता इशी, मेरा को प्लान तो पूरा होने दिया करो, तुम्हारी मेहरबानी होगी, अपना मुंह बंद रखना, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसने तो चुप होना नहीं है, आप सब जानते हैं। खैर मुझे देर हो रही है, चलता हूँ। चले शाह चाचू। इशी के इतनी बड़ी इमोशनल तकरीर पे सबको इसकी दिमागी हालत पे शक हुआ। इससे पहले हमदान के सरप्राइज का यहाँ ही सत्यानाश हो जाता, वो जल्दी से बोला, हाँ चलो। शाहजू इस सारी सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था। हमदान के अचानक बुलाने पे चौंका और फिर इसके साथ बाहर चला गया। अल्लाह हाफिज, दोनों ने मुश्तक्का कहा और बाहर चले गए। अल्लाह हाफिज। और इशी मिशी जल्दी नाश्ता करो, ईमान तुम लोगों को कॉलेज छोड़ देगा। इनको अल्लाह हाफिज कहती ऋषि ने इशी मिशी को भी कहा और फालतू बर्तन टेबल से उठाने लगी। हो गया, चले ईमान भाई। इशी मिशी ने भी हाथ साफ किया और बैग उठाते हुए खड़ी हो गई। हाँ चलो। अमान भी नाश्ता खत्म करते उठ गया। ओके, अल्लाह हाफिज, तीनों ने एक साथ कहा और बाहर चले गए। अल्लाह की ईमान में। ऋषि ने आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी और तीनों को अल्लाह की ईमान में दिया। भाई शॉप के पास छोड़ दे, हमारी दोस्त भी यहाँ आएगी, हमने नोट्स लेने हैं। कॉलेज के पास पहुंचती इशी बोली, तुम लोगों को जो चीज़ चाहिए वो हो किसी बड़े के साथ आया करो, अकेले नहीं जाते।
मान मोड़ काटते हुए बोला तो इसी ने मुंह बनाया। तो भाई आप ही ले चले ना प्लीज, टेस्ट है, नोट्स जरूरी है। मिशी ने हल पेश किया तो इशी भी खामोशी से सर हिलाने लगी। नहीं, मुझे देर हो रही है, हनान मेरा इंतजार कर रहा होगा। नाजली का सोच के इसका मूड खौफ हुआ। वो सुबह सुबह कोई बदमज़गी नहीं चाहता था, इसीलिए इनकार कर गया। क्या भाई, अब आपके पास अपनी बहनों के लिए भी टाइम नहीं? एक तो आप कहते हैं किसी बड़े के साथ आओ, और जब आपको कहती हैं तो आप बहाने करते हो। सब ऐसे ही करते हैं हमारे साथ। इसी ने थोड़ा इमोशनल होकर ड्रामा किया तो ईमान ने हैरत से उसे देखा, जो अपने ना आने वाले आंसू साफ कर रही थी। ये तुम क्या सुबह सुबह मल कर जज्बात बन रही हो? अमान ने हैरत से पूछा, जबकि मिशी अच्छे से इसकी एक्टिंग समझ गई थी और हंसी छुपाने के लिए मुंह खिड़की की तरफ मोड़ लिया, जबकि ईमान समझ रहा था वो भी रो रही है। आपको क्या लगता है हर वक्त हंसते रहते हैं हम लोग तो हमें कोई दुख नहीं होता होगा क्या? हम इंसान नहीं है? हमारी कोई जज्बात नहीं है? नहीं मान भाई, हमें भी दुख होता है, मगर शायद वक्त ने समझौता करना सिखा दिया है। इसी की एक्टिंग पे मान सचमुच जज्बाती हो गया था। तौबा है, इस लड़की की एक्टिंग पे दुख भी कहता होगा। ओ बाजी, कसम ले लो जो मैंने तुम्हें छुआ भी हो। और शैतान कहता होगा मैं तो बस वक्त ही जाया कर रहा हूँ, जबकि यहाँ तो मेरी भी बॉस मौजूद है। मिशी दिल ही दिल में सोच के हंसी छुपा रही थी, जबकि मान की शक्ल फुल 1997 की दिहाई हीरोइन जैसी ही लग रही थी, जिसे देख के मिशी ने के लिए हंसी रोकना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम था। चलो उतरो। शॉप के पास आती ही मान ने गाड़ी रोक कर कहा तो इशी को अपनी सारी मेहनत रायगा जाती नजर आई और वो मुंह बनाती नीचे उतर गई। तभी ईमान भी उतरा और गाड़ी लॉक करके इनको लेकर शॉप में आया। ये बताओ इतना ड्रामा क्यों किया है, जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें ऐसा कोई दुख नहीं मिला जिसे छुपाना पड़े। ईमान के पीछे शॉप में दाखिल होते मिशी ने इशी से सरगोशी की। पता है कोई दुख नहीं है, बस तुम अपना मुंह बंद रखो। इशी थोड़ा रुखूब झाड़ते हुए बोली, ज्यादा अम्मा ना बनो, बोलो मत, हम दोनों जुड़वा हैं, भूलो मत हम दोनों जुड़वा हैं, इस लिहाज से तुम मुझ पे रोब नहीं झाड़ सकती। और सीधी तरह बताती हो या बताओ भाई को तुम्हारे ड्रामे का। मिशी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो इसी मुंह के जाविये बिगाड़ती इधर उधर देखने लगी, इसीलिए ताकि नोट्स के पैसे भाई दे दें और हम अपने पैसों से अगले प्लान की चीजें खरीद सके। इधर उधर देख के इशी ने आंख दबा के कहा तो मिशी की पूरी आंखें खोल के अफसोस से उसे देखा, मगर इशी ही करती आगे बढ़ गई और मिशी भी खुशी खुशी इसके पीछे चली गई, क्योंकि वो पैसे दोनों ने बांटने थे। सॉरी। इशी मिशी को नोट्स लेते देख के ईमान एक साइड रखी बुक्स देखने लगा, जब उसे अपने पीछे से नसवांसी आवाज सुनाई दी। वो वापस पलटा, मगर हैरा से बेहोश होने को था, क्योंकि नाज़नीन खड़ी मुस्कुरा रही थी। एक तो इसका इतना महज़बाना अंदाज और ऊपर से सॉरी बोलना, दोनों ही ईमान के लिए हैरत अंदाज चीजें थी, क्योंकि उसे नहीं याद था कभी उसने जोर नाज़लीनी से किसी भी मुलाकात में नॉर्मली बात की हो। जी मुझसे कुछ कहा? ईमान पास देखते ईमान ने सीने पे उंगली रख के अपनी तरफ इशारा करते हुए कंफर्म करना चाहा तो नाज़लीनी मुस्कुराई। नहीं, इन किताबों से कहा है, क्योंकि आप इन्हें देख रहे थे ना, नाज़लीनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर ईमान इसकी बात समझ के गुस्से करने की बजाय अभी तक साख्त खड़ा था, क्योंकि नाज़लीनी उसे आप कह रही थी, जबकि वो हमेशा उसे तुम ही कहती थी। कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया? इतने आराम से बात, वो भी मुझसे। ईमान ने सुत्ते की हालत में पूछा तो नाज़लीनी ने दांत पीसे, जबकि होठ अभी भी मुस्कुरा रहे थे। पता है इस दिन बाद में मुझे लगा शायद मैंने ज्यादा बोल दिया था, सॉरी करना चाहिए, लेकिन अभी लग रहा है तुम हो ही इस काबिल। मैं ही पागल हूँ जो सोच रही हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा। नाज़लीनी ने एक क्लब चबा के कहा, जबकि होठों पे मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं समझा शायद इस शक्ल का कोई न्यू और मासूम वर्जन
वजन आ गया है मगर नामुमकिन। इसकी बात का बुरा मनाए बगैर ईमान ने संजीदगी से कहा और दोबारा बुक्स देखने लगा। तुम ना दुनिया में बस हम गरीबों का ऑक्सीजन जाया करने आए हो। ऐसी बेइज्जती पे नजरीन जल भुन गई, इसलिए अपने दिल की आग बुझाने के लिए बोली, अगर इतनी ही ऑक्सीजन की फिक्र है तो मरीख पे चली जाओ, बेचारी ऑक्सीजन को भी सुकून का मौका मिले। सामने भी ईमान शाह था, वो चुप हो जाता, नामुमकिन। जबान चलाने वाले मर्द बहुत ही ज़दाना टाइप होते हैं। इसकी तंजिया बात पे नाज़रीन इसके सामने जाती बोली, काश कि मैं भी कह सकता, हाथ चलाने वाली औरतें बहुत ही मर्दाना टाइप होती हैं। इसका गुस्सा एंजॉय करते ईमान ने हंसी दबाकर मसनूई संजीदगी से कहा तो नाज़रीन ने आंखें छोटी करके गुस्से से उसे घूरा। जाहिर लोफर, टीन डब्बे की शक्ल वाला अजीब आदमी। नाज़रीनी पाँव पटकती बोली, जबकि नैना लखबात सुनकर ईमान हैरान परेशान खड़ा था, और तुम काली कलोटी औरत। ईमान ने फिकत 3 लफ्जों में अपना बदला लेने के साथ साथ उससे अच्छा खासा तपा दिया था। वो जो अपने रवैये की माफ़ी मांगने आई थी, एक नई लड़ाई शुरू कर चुकी थी। जो जब लफ्जों से बात ना बनी, अपना शूज जोर से ईमान के पाँव पे मारा, जिस पे वो चीख उठा। जब सब इनकी तरफ मुतवज्जो हुए तो नाज़रीनी मुस्कुरा के उसे देखती चली गई, जैसे उसने तो कुछ किया ही ना हो। ऐसी जंगलियों पे बैन लगाना चाहिए कि वो पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकती। उसकी पुश्त को घूरता ईमान गुस्से से बोला। इसकी बात पे इशी मिशी जोर से हंसी तो ईमान ने चौंक कर इन्हें देखा, जो इन दोनों को न जाने कब से लड़ता देख रही थी। उसके देखते ही दोनों ने सर समझाने वाले अंदाज में हिलाया। या अल्लाह खैर, ईमान जानता था अब कोई नया ड्रामा शुरू होने वाला है, क्योंकि बात अब इशी मिशी तक पहुंच गई थी, जबकि वो इस बात से बेखबर था कि ड्रामा नहीं, इसकी जिंदगी की हॉरर फिल्म शुरू होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। बरीरा आई ना, अंदर आए, अब बाहर क्यों खड़ी है? आए जरी बाजी, आप भी। शुक्रिया। घंटी की आवाज पे हरम ने दरवाजा खोला तो जताशा और बरेरा खड़ी थी। इनको देख के उसे हैरत हुई, मगर खुद को संभालते उसने मुस्कुरा कर सलाम किया और अंदर आने की जगह देते हुए आने का कहा। मुस्कुरा के सलाम का जवाब देते वो दोनों अंदर आई। बैठे ना प्लीज। हरम ने दोनों को बैठने का कहा और खुद किचन में चली गई। जरी और बरेरा भी बैठ गई। कुछ देर बाद हरम जूस, फ्रूट और कुछ दीगर चीजों के साथ हाल में आई और ट्रे मेज पे इनके सामने रखी। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? जरी ने कहा तो हरम ने मुस्कुरा कर कहा कि तकल्लुफ कैसा? वो हम आज एक खास सिलसिले में तुम्हारे पास आई हैं। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद जरी बोली। इसकी बात सुनकर सीढ़ियों से उतरती सारा का दिल झूम उठा। वही हरम भी दिल ही दिल में खुश हुई, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि जरी बरेरा को साथ क्यों लाई है, जबकि वो रिया को या ऋषि और हमा को भी ला सकती थी। जी कहिए। हिरम ना समझ बनते हुए मुस्कुराकर बोली, जबकि सारा तो मानो जमीन पे पाँव नहीं टिक रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसका ख्वाब सच होने वाला है। कुछ मांगने आए हैं और बहुत उम्मीद से आए हैं कि आप हमें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। जरी ने खास तहमीत बांधते हुए कहा तो हुरम ने सर हिलाया। वो मैं अपने बेटे खाजिक के लिए आपकी बेटी सारा का रिश्ता मांगने आई हूँ। जरी की इशारा करते ही बरेरा धीमे लहजे में बोली तो सारा ने झटके से सर उठाया। सारे ख्वाब जमीन बोस हो गए थे। कुछ ऐसा ही हाल हरम का भी था। शायद उसे भी दुख हुआ था। खाजिक बहुत अच्छा लड़का है, आर्मी में है और माशाल्लाह बहुत सुलझा हुआ समझदार बच्चा है, और सबसे बड़ी बात हमारे खानदान का है। वो खुद इस रिश्ते के लिए राजी है, बल्कि यूं कहीं उसे हमारी सारा बहुत पसंद आई है। जरी मुस्कुराते हुए बोली, जबकि इसकी बात सुनकर हरम मुस्कुरा भी ना सकी। रिया, अनी और ऋषि लोग भी आना चाहती थी, मगर हमने सोचा पहले आपकी रजामंदी जान लें, फिर बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगे। खाजिक के बाबा और नाज़लीनी भी आना चाहते हैं। बरीरा हरम को मुसलसल खामोश देखकर बोली, जी अहम, हमें कुछ वक्त दें, मैं बात करूंगी सारा के बाबा और भाई से, फिर जो इनका फैसला हो। जरी का बरेरा के साथ आना इस बात की दलील थी कि वो हमदान के लिए बाकी सारा का रिश्ता नहीं करना चाहती, इसीलिए वो कुछ रजामंदी से बोली। क्योंकि वो खाजिक से मिल चुकी थी, उसे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई थी। इसके जवाब पे बरीरा और जरी मुस्कुराने लगी और मजीद कुछ बातों के बाद चली गई। मामा,
آپ نے صاف صاف انکار کیوں نہیں کیا؟ ان کے جاتے ہی سارا غصے سے حرم کے پاس آئی اور چیخ کے بولی، تم نے دیکھا نہیں، زری خود آئی تھی، اس کا کیا مطلب تھا؟ یہی کہ وہ ہمدان کے لیے تمہارا رشتہ نہیں مانگے گی، پھر بھی تم ایسے کہہ رہی ہو، اب کون سی امید باقی ہے؟ اور خازق اچھا بھلا لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے، اپنی جاب کرتا ہے، شکل صورت ہی اچھی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مجھے تو اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ آج کرتی ہوں میں تمہارے بابا اور زنبیل سے بات، اور تم بھی بھول جاؤ ہمدان کو، نہیں ہے وہ تمہارے نصیب میں تو نصیب سے لڑنے کی کوشش مت کرو۔ حرم بھی اسی کے انداز میں بولی۔ اسے اب سارا کی بچپنا ضد سے خوف آنے لگا تھا۔ حرم کی بات سن کے سارا پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ حرم سان نفی میں ہلا کر رہ گئی۔ آج بریرہ اور زری آئی تھیں۔ بریرہ اپنے بیٹے زخ کے لیے، سارا کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ شام کھانے کی میز پر حرم نے بتایا تو زنبیل اور حسام کا ہاتھ ایک پل کو رکا۔ مجھے اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، آپ لوگ بھی اپنی تسلی کے لیے پتہ کرا لیں، پھر جیسے آپ کو بہتر لگے۔ ان کو خاموش دیکھ کر حرم دوبارہ بولی تو حسام نے زنبیل کی طرف دیکھ کے سر ہلایا، جو خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ زنبیل، تم لڑکے کے بارے میں پتہ کرا لو، پھر ان کو دعوت پہ بلا لیتے ہیں، حسام نے کہا تو زنبیل جیسے جی اچھا کہتے خاموش ہو گیا۔ وہ خازق سے مل چکا تھا اور کافی حد تک اسے جانتا بھی تھا، مگر پھر بھی سارا کا سوچتے وہ کچھ پریشان تھا، کیونکہ سارا بہت لاڈلی تھی اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت مشکل سے پسند کرتی تھی، جبکہ یہ زندگی بھر کا فیصلہ تھا۔ ماما، کیا آپ نے سارا سے بات کر لی؟ کھانے کے بعد جب حرم دودھ کا گلاس لے کر زنبیل کے کمرے میں آئی، جو لیپ ٹاپ گود میں رکھے کوئی کام کر رہا تھا، حرم کے آتے ہی لیپ ٹاپ بند کر دیا اور دودھ کا گلاس حرم سے لیتے ہوئے پوچھا، ہاں کر لی ہے بات، اسے کوئی اعتراض نہیں؟ حرم خود کو کنپوز کرتے ہوئے بولی، اسے ڈر تھا کہ کہیں زنبیل خود سارا سے بات نہ کر لے اور وہ سب بتا دے۔ اب وہ سارا کو مزید بے وقوفی نہیں کرنے دے سکتی تھی۔ صحیح ہے، زنبیل نے سمجھ کے سر ہلایا۔ اسے شب بخیر کہتی حرم دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ وہ بس دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ سارا کا دماغ ٹھیک ہو جانے تک زنبیل اس سے بات نہ ہی کرے۔ سارا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خازق کا قیمہ بنا دے، جس نے ان کے گھر رشتہ بھیجا تھا، اور اس سے بھی بڑی بات تو یہ تھی کہ اس کے گھر والوں کو یہ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا لگا۔ حرم سمجھ گئی تھی سارا ایک ایسے راستے پہ بھاگ رہی ہے جس کی کوئی منزل نہیں، کیونکہ حنان کی منگنی پہ زری نے باتوں ہی باتوں میں اسے باور کرا دیا تھا کہ وہ ہمدان کا رشتہ خاندان میں ہی کرے گی، مگر یہ بات حرم نے سارا کو نہیں بتائی تھی تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے، اور جو کچھ امید باقی تھی وہ بریرہ کے ساتھ آنے پہ پوری ہو گئی تھی۔ دل تو کر رہا ہے جا کے اس لفنگے کا منہ نوچ لوں۔ خازق لوگوں کو زنبیل نے دعوت پہ گھر بلایا تھا، اور یہ بات سارا کو ان کے آنے کے بعد معلوم ہوئی، تبھی وہ غصے سے تن فن کرتی لان میں آ گئی، جہاں خازق فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ زنبیل نے اپنے طور پہ مکمل معلومات حاصل کر لی تھی۔ جب اسے دیکھ کے سارا بڑبڑائی، تب ہی خازق جا کے ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ جب سارا کی نظر درخت پہ پڑی تو اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا، اور وہ پاس پڑا پتھر اٹھا کے درخت کے پاس آئی اور درخت پہ لگے شہد کی مکھیوں کے چھتے کو زور سے پتھر مارا۔ پتھر جیسے ہی خازق کے پاؤں میں واپس آ کے گرا تو اس نے چونک کر پتھر دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں سارا کھڑی آنکھیں پھاڑے شہد کی مکھیوں کے طوفان کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مکھیاں ان تک پہنچی، خاخز نے اس کا ہاتھ کھینچا اور بھاگ کے دوسری طرف بنے کمرے کے گلاس ڈور سے اندر ہو گئے۔ پاگل ہو کیا؟ کیوں چھیڑا انہیں؟ اگر کاٹ لیتی تو؟ خازق تھوڑا غصے سے بولا، اسی لیے چھیڑا تاکہ مکھیاں تمہیں پیار کریں، اور اسی خوشی میں تم شیشے دیکھو جو پچھلے کئی برس سے نہیں دیکھا، اور یہ جو مجھ سے شادی کرنے کی خوش فہمی ہے ساری دور ہو جائے۔ سارا ایک لفظ چبا کر بولی۔ اس کے غصے کی وجہ جان کے خازق مسکرانے لگا۔ تو یہ بات ہے، ویسے تم لکی ہو جسے میں نے چنا، ورنہ لڑکیاں تو مرتی ہیں مجھ پہ۔ خازق نے کے کالر پکڑ کر کہا تو سارا نے مذاق اڑانے والے انداز میں
हो किया, जिस पे खाजिक हंसने लगा। देखो मिस्टर, एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो जागती आंखों से ख्वाब सजा रखे हैं ना मुझसे शादी के, बेहतर है इन्हें भूल जाओ, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। सारा उंगली दिखा के वार्न करने वाले अंदाज में बोली। इसकी आखिरी बात पे खाजिन का दिल दुखा। कौन है वो? उसने संजीदगी से पूछा, जबकि दिल कर रहा था सब खत्म कर दे। ये शिरकत ऐसी ही चीज़ है, अच्छे से अच्छे इंसान को भी ख़त्म कर देती है। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, अपने काम से काम रखो। सारा ने गुस्से से कहा और क्लास डोर धकेल के बाहर निकल गई। अब बाहर से मक्खियाँ हट गई थी। दूर तक खाजिक की जख्मी नज़रों ने इसका पीछा किया और हाथ में पकड़ा फोन उसने जोर से दबाया और दीवार में दे मारा, मगर अगले ही पल 80,000 का नुकसान मोहब्बत पे भारी पड़ गया और वो वक्ती तौर पे सब भूल भाल मोबाइल उठाए दुख से उलट पलट के उसे देखने लगा, जिससे स्क्रीन टूट गई थी और मोबाइल ऑफ हो गया था। उसने मोबाइल ऑन किया तो ऊपर वाला हिस्सा फुल वाइट हो गया, जबकि निचले हिस्से पे 3-4 रंग जगमगा रहे थे। खाजिक ने दुख से मोबाइल चूमा और पॉकेट में डाल लिया। इस वक्त उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मोबाइल की जगह सारा का सर पकड़ के दीवार में क्यों नहीं मारा। अब देखना बच्चों, शादी तो तुम ही से करूँगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा मोबाइल टूटा। खाजिक ने दिल में अहद किया और दुख से पॉकेट के ऊपर से मोबाइल पे हाथ फेरा। अब यहाँ से शुरू होगी बदले के लिए शादी की स्टोरी। अच्छा ज्यादा हंसे मत, वो असल में इनके मामा पापा की दूर 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 तक कोई लड़ाई जहन में नहीं आ रही थी, जिसकी बिना पे मैं इन दोनों को का टांका जोड़ती। सो ऐसी ही सही, वैसे भी फनी नावल है और है भी मासूम राइटर का, तो भी इसमें कुछ भी हो सकता है। ईशी, मैं जो सोच रही हूँ क्या तुम भी वही सोच रही हो? ईशी मिशी कमरे में बैठी थी। मिशी पेंटिंग कर रही थी जब ईशी बेड पर बैठी किताब गोद में रखे सामने खिड़की से बाहर के नज़ारे कर रही थी। मिशी की बात पे ईशी ने चौंक कर उसे देखा। मुझे क्या पता तुम्हारे खरफाती दिमाग में क्या चल रहा है। मिशी की बात पे ईशी ने बुरा सा मुंह बनाकर किताब बंद की और साइड टेबल पे रखी, जबकि इसकी बात पे मिशी का मुंह खुल गया। अरे खरफातों की नानी, ये काम तुम करती हो? होश में आती ही मिशी नाक चढ़ाकर बोली, जबकि हाथ झटकते ही पेंट ब्रश के साथ लगा सुर्ख रंग थोड़ा सा इसकी नाक पे जा लगा। ईशी मुस्कुराने लगी तो मिशी ने उसे घूरा और नाराजगी से मुंह मोड़ गई। आले आले मेरा पाला बच्चा नाराज हो गया। मिशी के मुंह मोड़ते ही ईशी बेड से उठ के इसके पास आई और इसके गले में बाहें डालकर हाथ में पकड़ा चॉकलेट का पीस इसके मुंह में डाला और गाल चूमते प्यार से बोली। तो मिशी ने मुंह हिलाते घूर के उसे देखा। ईशी, तुम पक्की ठरकन हो, कैसे चूना लगाती हो? मड़श मड़श चॉकलेट खाते मिशी भरे मुंह से बोली। हाँ 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 हाँ। इसकी बात सुनकर ईशी ने जोरदार कहका लगाया। लगता है यहाँ जनाब रुको रे वाला दौरा पड़ा है। तभी कमरे में आते जरार ने मिशी की बात सुनी। बात तो समझ ना आई, अलबत्ता रे को रे समझ आ गया। तुम ना अपना मुंह बंद रखो मड़ाशी। मिशी जरार की बात पे तब के बोली। हाँ 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 हाँ। ईशी और जरार हंस के लूट-फूट हो गए। मरो तुम दोनों। मिशी पेंट ब्रश दोनों को मारती गुस्से से बोली। हाय मिशी, मैं मरी तो तुम भी मरोगी, क्योंकि हम दोनों जुड़वा हैं। ईशी दिल पे हाथ रख के दुखी होने की एक्टिंग करके बोली। तो मिशी की आंखें बाहर निकली। नहीं, सिर्फ यही मरे तो नहीं। मिशी डर के बोली। तो ईशी ने दोबारा कहका लगाया, जबकि जरा सदमे से मिशी को देखने लगा। हम लोग आ जाए। रात खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए तो ईशी मिशी दिमाग में चलते तूफान को बाहर निकाल के सबको फैलाने के लिए शाहजेब और ऋषि के कमरे में आई, जहां ऋषि शाहजेब की शर्ट्स हैंग कर रही थी, जबकि शाहजेब बेड पे बैठा कोई काम कर रहा था लैपटॉप पे।
ऋषि ने थोड़ा सा दरवाजा खोल के अंदर आने की इजाजत मांगी तो ऋषि और शाहजेब ने हैरान होकर इन्हें देखा और अंदर आने की इजाजत दी। वो पापा और छोटी बहन, हमने आप लोगों से एक जरूरी बात करनी थी। मिशी दोनों को देखते हुए बोली तो शाहजेब ने लैपटॉप बंद करके दोनों को पास बिठाया और प्यार से पूछा, क्या बात? पापा, हम मान भाई का रिश्ता लाए हैं। ऋषि ने पुरजोश होते बताया तो शाहजेब ने चौंक कर उसे देखा और फिर पास खड़ी ऋषि को। लो जी, इसी की कमी रह गई थी, इसीलिए मैं इन्हें पढ़ा लिखा रही थी कि कल को लोगों के रिश्ते कराती फिरे। गौर से देखो इनको, पूरी तरह उगी नहीं जमीन से और चली है बड़े भाई का रिश्ता कराने। ऋषि ने हाथ में पकड़ी शर्ट सोफे पे फेंकी और दोनों की खूब क्लास ली। तो ये कौन सी किताब में लिखा है, छोटी बहनें अपने भाई की खुशियों का नहीं सोच सकती? जब यहाँ किसी और को हमारे भाई की परवाह नहीं है तो हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा ना। पापा तो पूरे दिन काम पे होते हैं और आप पूरा दिन किचन में, और जब कभी इत्तेफाक से दोनों साथ मिल भी जाओ तो आप दोनों की लड़ाइयाँ ही खत्म नहीं होती। आप लोगों को क्या इल्म के मान भाई किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, यहाँ कोई इनको समझने वाला है ही नहीं। ऐसे ही रहा तो वो अपना गम दिल को लगा के सारी उम्र कुंवारे बैठे रह जाएंगे। ऋषि फुल दुखी हीरोइन की एक्टिंग करते हुए बोली तो मिशी ने होठों पे 2 उंगलियां रख के हंसी रोकी, जबकि शाहजेब और ऋषि हैरानी से उसे देख रहे थे कि मान का ऐसा कौन सा गम है जो सारे घर वालों को छोड़ के सिर्फ ऋषि मिशी को दिखा। कौन सा गम? ऋषि ने हैरानगी से पूछा तो ऋषि ने दिल ही दिल में खुद को दाद दी और खुश हुई। कुछ हद तक इसका प्लान कामयाब हो गया था, बस अब उसे ओवर एक्टिंग से हट के दोनों को फुल शीशे में उतारना था। वो असल में भाई और नाजलीनी एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसने दुखी अंदाज में गोद में रखे हाथों को देखते बात शुरू की। इसकी बात पे ऋषि और शाह ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। ऋषि ने कोई बात करने के लिए मुंह खोला, जबकि ऋषि ने खतरा महसूस करते फौरन बात शुरू कर दी। और भाई नाजलीनी से शादी करना चाहते हैं, मगर हाँ, ये जमाने की मजबूरियां हमेशा आशिकों को ही आजमाती हैं। भाई वहाँ रिश्ता नहीं लेके जा सकते कि अभी मेरा कोई काम नहीं, और हम लोग नाजलीनी लोगों जितने अमीर भी नहीं। ऊपर से आप दोनों की लड़ाइयाँ भी भाई को मजबूर करती हैं कि वो अपनी मोहब्बत से पीछे हट जाए, क्योंकि नाजलीनी के पेरेंट्स बहुत अच्छे से रहते हैं और भाई नहीं चाहते यहाँ आकर नाजलीनी पे बुरा ऑपरेशन क्योंकि नाजरीन के पेरेंट्स बहुत अच्छे से रहते हैं और भाई नहीं चाहते कि यहाँ का नाजरीन पे बुरा ऑपरेशन पड़े। इसी फुल एक्टिंग करते हुए बोली तो मिशी ने आंखें बंद की। इसी की ओवर एक्टिंग इन दोनों को फंसा सकती थी। अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो मोहब्बत क्यों की? ऋषि ने उलझ के सवाल पूछा तो इसी मिशी का सांस अटका। ओफो छोटी बहन, आप भी ना बच्चों जैसी बातें करती हैं। अब मोहब्बत पूछ के थोड़ी ना होती है। इसी माथे पे हाथ मारते बोली तो मिशी ने दिल ही दिल में इसकी हाजिर दिमागी को दाद दी। तो अब तुम लोग क्या चाहती हो? ईशा ने सवाल किया तो इसी ने गला खनकारा। अभी मौका था अपने प्लान को हतमी शक्ल देने का। पापा, हम चाहते हैं आप लोग बरीरा आंटी के पास नाजलीनी का रिश्ता मांगने जाएं। देखे ना, जॉब तो हनान भाई के पास भी नहीं है, मगर रिश्ता हो गया ना। और वैसे भी कुछ दिनों बाद हानी भाई और मान भाई का फाइनल प्रैक्टिकल टेस्ट है। उन्होंने बहुत मेहनत की और इनकी पिछली परफॉर्मेंस से सब बहुत मुतासिर हैं। इसी फीसद उम्मीद है कि चेयरमैन पीसीबी हामी भाई और ईमान भाई को पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा बना देंगे। इसी कमाल महारत से दोनों को शीशे में उतारने में कामयाब हुई। ऋषि और शाह के चेहरों से लग रहा था कि वो भी इसके लिए राजी हैं, और जब तक मान भाई की शादी नहीं हो जाती आप दोनों को अपनी लड़ाइयों पर कंट्रोल करना होगा। मिशी ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला तो दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए सर हाँ में हिलाया। और जब तक दोनों का रिश्ता पक्का नहीं हो जाता ये बात आपने मान भाई को नहीं बतानी, और बरीरा आंटी को भी मना करना है कि नाजरीनी को कोई बात ना करें। इसी फौरन बोली तो ऋषि और शाह ने सवाली नजरों से उसे देखा। वो एक्चुअली आम भाई और नाजली को सरप्राइज देना चाहते हैं। मिशी ने फौरन बात संभाली तो दोनों ने समझ के सर हिलाया। ठीक है, मैं कल ही जरी और रिया बहन को लेके जाती हूँ
ब्रीरा के घर। ऋषि को सोच के बोली तो दोनों ने खुशी से याहू कहा और दोनों को शब बखैर कहते हुए कमरे में चली गई। हाँ 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 हाँ। कमरे में आते ही ईशी बेड पे गिरी और हंस हंस के लोटपोट होने लगी। बस करो ईशी, अगर मान भाई और नाजली को मालूम हुआ ना हमारा ये कारनामा तो हमारा कीमा बना के चील कौवों को खिला देंगे। इसके पास बेड पे बैठती मिशी बोली तो ईशी ने इसकी तरफ करवट बदली और कहनी के बल बाजू बेड पे अटका के इस पे सर रख के उसे देखने लगी। कुछ नहीं होता मिशी, डरपोक, बस एंजॉय करो। ईशी आंख दबा के बोली तो मिशी ने तो सबसे सर हिलाया। वैसे तुमने ये किया क्यों? मिशी को इसके इस प्लान के अभी तक समझ नहीं आई थी। आखिर उसने क्यों फंसाया इन दोनों को? अरे यार, देखा नहीं था कितने मजे का लड़ते हैं दोनों। वैसे भी छोटी बहन और पापा की लड़ाई देख देख कर बोर हो गई हूँ, कुछ न्यू चाहती हूँ। ईशी मजे से बोली तो मिशी ने सर नफी में हिलाया। फिर ईशी के हंसने पे वो भी हंसने लगी। कल आप सब रेडी रहना, मेरे एक दोस्त की तरफ जाना है सबको। नाश्ते की टेबल पे आजिम ने सबको कहा तो सब इनकी तरफ मुतवज्जो हुए। क्यों? वो इसकी तरफ दावत है दिन के खाने की, याद रहे सबने जाना है। आप सब याद से 9 बजे तक तैयार रहना। एहराम साहब के सवाल पे आजिम ने तफसील बताई और मजीद सवालों से बचने के लिए फौरन उठकर काम का कहते चला गया। ईशी की पुरसोच नजरों ने दूर तक इसका पीछा किया। चलो ईशी मिशी, तुम लोग भी तैयार हो जाओ, तुम लोगों के पापा को जाना है, अभी इन्हीं के साथ चली जाओ कॉलेज। ऋषि ने दोनों को कहा तो दोनों ने सर हिलाया और जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करके शाह के साथ कॉलेज चली गई। तुम दोनों के लिए खुशखबरी है, आज सुबह हरम का फोन आया था, इन्हें ये रिश्ता मंजूर है और आज हम मंगनी की डेट फिक्स करने जाएंगे अगले हफ्ते की। नाजली और खाजिक नाश्ता कर रहे थे जब बरेरा जूस का जग टेबल पे रखती बोली और दोनों ने एक दूसरे को देखा। सच मॉम? वाह, बहुत मजा आएगा, नाजली जोश से बोली। खर्क और इनके बाबा दोनों मुस्कुराने लगे। भाई जल्दी जल्दी करें, मुझे कॉलेज छोड़ दे, मैं ये खुश खबरी जल्दी जल्दी इशी मिशी से शेयर करना चाहती हूँ। नाजली ने जल्दी मचाई तो ब्रीरा सर नफी में हिलाते मुस्कुराने लगी। खाजिक ने हाथ साफ करके उसे चलने का कहा। दोनों अल्लाह हाफिज कहते बाहर निकल आए। सारा बच्चे हरम सारा के कमरे में आई जो कल से कमरे में बंद थी। लाडली बेटी को ऐसे खामोशी से पड़े देख के इसका दिल कट गया। सारा कब ऐसे खामोश होती थी? इसकी मर्जी का जूस ना आए तो घर सर पर उठा लेती थी, मगर अभी वो खामोशी से करवट लिए बेड पे लेटी थी और सामने दीवार पे लगी पेंटिंग को देख रही थी जिसमें एक लड़की सड़क पे अकेली खड़ी बाजू फैलाए आसमान की तरफ देख रही थी और सड़क के दोनों साइड बड़े बड़े दरख्त थे। हरम ने इसके पास आकर इसको पुकारा, तब भी सारा वैसी ही लेटी रही। आंखें बेहद सूजी हुई थी और सुर्ख भी हद से ज्यादा थी। हरम के बालों दिल को कुछ हुआ। सारा के पास बैठती उसने इसके बालों पे हाथ रखा। ये क्या हाल बना रखा है मेरी जान? हरम दुख से बोली तो सारा तंजिया मुस्कुरा दी। ये हाल मैंने नहीं, आप लोगों ने किया है। जब वो बोली तो आवाज बेहद भारी थी। मेरी जान मत करो ऐसा, हाजिक बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और बेटा हमदान का क्या पता, वो भी किसी और को पसंद करता हो, ऐसे तुम्हारा इससे रिश्ता हो भी जाए वो खुश नहीं रह सकेगा तुम्हारे साथ। जब वो खुश नहीं रहेगा तो तुम कैसे खुश रह सकती हो? हरम ने प्यार से उसे समझाने की कोशिश की। आप सब लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। सारा जब बोली तो आवाज में नमी थी। इसके कमरे में आता जंबील दरवाजे के पास ही हैरानी से रुक गया। हरम और सारा इसकी अम्मा से बेखबर थी। ऐसे मत कहो मेरी जान, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। खाजिक तुम्हारे लिए बेहतरीन है। हरम बेबसी से बोली तो सारा उठकर बैठ गई। इसके बैठते ही जंबील ने इसका चेहरा देखा जो सिर्फ कुछ दिनों में मुरझा गया था। ये इसकी गुड़िया तो लग ही नहीं रही थी। मॉम, मैंने बचपन से जो मांगा आपने, भाई ने, पापा ने फौरन दिलाया, कभी किसी चीज से इनकार नहीं किया और मुझे ये एहसास कराया कि मैं कोई बहुत ही आला हूँ जो जिसे चाहे जब चाहे या पा सकती है। अगर तब आप मुझे किसी बात पे सब्र करना सिखाती तो शायद आज मेरा दिल ऐसे ना तड़प रहा होता। मेरे साथ आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कभी माफ नहीं करूंगी, सारा ने दुख से कहा और फिर रोती हुई वॉशरूम में भाग गई। हरम ने नीम आंखों से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा और बेबसी से वापस मुड़ी, मगर सामने
زنبیل کو دیکھ کر اس کے پاؤں وہی زمین میں جم گئے۔ زنبیل بھی ناراضگی سے کچھ پل ماں کو دیکھتا رہا، پھر واپس مڑ گیا۔ حرم نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مام آپ تو کہہ رہی تھی سارا خوش ہے اس رشتے سے، پھر اب یہ سب کیا ہے؟ زنبیل کمرے میں آیا اور زور سے منہ دیوار پر مارا۔ تبھی حرم بھی اس کے پیچھے کمرے میں آئی تو اس نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں پوچھا، زنبیل میں ماں ہوں اس کا برا نہیں چاہوں گی، یقین کرو وہ جو مانگ رہی ہے اس دفعہ وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کا یہ کچھ دن کا رونا ساری زندگی کے رونے سے بہتر ہے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائے گی، تم فکر مت کرو۔ اور کیا وہ آگ مانگتی تو تم لا دیتے؟ اس دفعہ کچھ ایسا ہی حال ہے اس کی فرمائش کا۔ پلیز بیٹا اپنی ماں کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی کچھ دن کی ناراضگی ساری زندگی کے رونے سے بہتر ہے۔ حرم کے ٹوک ٹوک انداز پہ زنبیل جواب ہو گیا اور بے بس سا بیڈ پہ بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسا کے۔ وہ بے بسی کی انتہا پہ تھا۔ یہ تو وہ بھی جان گیا تھا کہ حرم کبھی سارا کا برا نہیں چاہے گی۔ حوصلہ مت ہارو، انشاءاللہ ہماری سارا بہت خوش رہے گی۔ حرم نے اس کا کندھا تھپتھپا کے کہا تو اس نے بھی دل سے انشاءاللہ کہا اور حرم کے ہاتھ کی پشت پہ سر چٹکا دیا۔ حرم بھی اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا سر تھپتھپانے لگی۔ اے سنو، ایشی مشی کالج میں داخل ہوئی تو دو لڑکیاں سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی۔ ایشی جیسی ہی پاس سے گزرنے لگی تو ایک نے روکا، وہ دونوں ان کی سینئرز تھیں۔ کیا؟ ایشی نے رک کے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور سوال کیا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے لگیں۔ یہ پین اٹھا کے دو۔ جس لڑکی نے روکا تھا اس نے ہاتھ میں پکڑا پین سیڑھیوں سے نیچے پھینکا اور ایشی کو حکم دیا، جی اچھا۔ ایشی نے پیچھے مڑ کے پین کو دیکھا اور معصوم شکل بنا کے بولی تو دونوں لڑکیوں نے گردنیں کڑا کر اسے دیکھا۔ وہی مشی ایشی کی اس تابعداری پہ بے ہوش ہونے کو تھی، جبکہ سیڑھیوں سے تھوڑا دور کھڑی نازلین بھی حیرت سے ایشی کو دیکھنے لگی اور ابھی ہی کالج میں آئی تھی جب اس لڑکی نے پن نیچے پھینکا تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی بہت سی اور سینئرز اور جونیئر بھی رک کے تجسس سے دیکھنے لگی۔ یہ لو، آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اتر کے پن کے پاس آتے ہی ایشی نے پاؤں مار کے پن تھوڑا اور دور پھینکا اور اس لڑکی کو دیکھ کر معصومیت سے مسکرا کر بولی۔ وہی مشی اور نازلین کا رکا ہوا سانس بحال ہوا کہ ایشی کی ذہنی حالت بالکل اپنی جگہ پہ ہے اور دونوں ہنسی روک کے اس لڑکی کو دیکھنے لگی جو اب ایشی کو ایسے گھور رہی تھی جیسے کچا چبا جائے گی۔ تمہاری اتنی ہمت! وہ لڑکی سیڑھیوں پہ کھڑی ہو کے چلائی کیونکہ تمام لڑکیاں ایسے مذاق اڑتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہی سینئر باجی، یہ ہمت تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تعریف مت کریں، اتنی سی ہمت پہ مجھے شرم آتی ہے۔ ایشی کالج سیکشن کا کونا پکڑ کے دانتوں میں دباتے معصومیت سے بولی اور آخری بات پہ دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیے تو پورے مجمع نے زوردار کہکا لگایا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی بچو۔ وہ لڑکی غصے سے اس کی جانب بڑھی مگر دور سے آتی ٹیچر کو دیکھتے اس لڑکی نے دانت پیس کے کہا اور وہاں سے جانے لگی، ہاں ضرور دیکھ لینا مگر ماشاءاللہ ضرور بولنا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے نظر بہت جلدی لگتی ہے، ایشی آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی تو سب نے دوبارہ کہکا لگایا اور وہ لڑکی پاؤں پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ تب ہی مشی اور نازلین بھی ہنستی ہوئی اس آفت کے پاس آئی اور بازو سے پکڑ کر اسے ساتھ لے گئی۔ تمہیں پتہ ہے یہاں آدھے سے زیادہ لڑکیاں کوجی ہیں۔ لاسٹ پیریڈ کے بعد ایشی مشی اور نازلین سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب ایشی نے پین انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر نازلین نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جبکہ مشی نے جوس کا ڈبہ کھولنے پہ ہی اپنی توجہ مرکوز رکھی، جیسے اس کے لیے اس وقت کا سب سے اہم کام یہی ہو۔ کیوں، تمہیں کیسے پتا؟ نازلی نے مشی کو مصروف دیکھا جیسے ایشی کی اونٹ پر ٹانگ باتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا اور پھر تجسس سے ایشی سے پوچھا، لو جی، اس کو جاننے کے لیے بھی کوئی تجربے کی ضرورت تھوڑی ہے نا ہوتی۔ آخری سیڑھی پہ رک کے ایشی نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ مشی اب دونوں کو اگنور کیے لیز کھاتے ہوئے ایک ایک گھونٹ جوس پی رہی تھی۔ ایشی کی بات پہ نازلی نہ سمجھی سے منہ کھولے اس کو دیکھنے لگی تو ایشی نے سر پہ ہاتھ مارا، پھر مشی کے ہاتھ میں پکڑا لیز کا پیکٹ لیا اور ایک لیز نکال کر نازلی کے منہ میں
ڈالا، جبکہ 3-4 اپنے منہ میں ٹھوسے اور دوبارہ پیکٹ مشی کو پکڑا دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا اگلی بار مشی نے پیکٹ نہیں دینا تھا۔ نازلی برا سا منہ بنا کے اسے دیکھنے لگی۔ اوہو، اتنا مت سوچو، ابھی دیکھنا۔ آخری سیڑھی پہ ہی رک کے ایشی نے کہا۔ گراؤنڈ اس وقت لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا۔ چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ کچھ لڑکیاں کلاس روم میں تھیں، جبکہ زیادہ تر گھر جانے کے لیے نکل رہی تھیں۔ اوئے کھوجی! ایشی نے ایک ہاتھ دائیں گال پہ رکھ کے آواز کو روکتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تو گراؤنڈ میں موجود آدھے سے زیادہ لڑکیوں نے مڑ کے دیکھا۔ ایشی نے نازلی کی طرف دیکھتے ہوئے ایک آنکھ دبا کے مسکراہٹ دبائی، جبکہ ایشی کی حرکت پہ جوس فوارے کی صورت مشی کے منہ سے باہر نکلا۔ اب اس کی شرارت سمجھتے نازلی بھی ہنس رہی تھی۔ کچھ لڑکیاں تو ان کو ہنستا دیکھ کے شرمندہ سی ہو گئی، جبکہ کچھ نے گھور کے ایشی کو دیکھا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑھاتے ہوئے گیٹ کی طرف چلی گئی، کیونکہ ان تینوں کے گروپ سے پنگا تو کوئی لے نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ آفتیں تھیں جنہوں نے سینئرز کو بھی تکنی کا ناچ نچا دیا تھا، اور یہاں سینئرز جونیئرز سے بچ کے چل رہی تھیں۔ ویسے کوجی تو ہم لوگ بھی ہیں، نازلی نے دونوں کے ساتھ چلتے ہوئے گیٹ کے پاس آتے کہا، کیونکہ چھٹی ہو چکی تھی۔ ہاں، اور ہمارے نصیب میں بھی کوجی ہی ہوں گے، مشی نے جلے دل کے ساتھ کہا تو ایشی اور نازلی نے زوردار کہکا لگایا۔ نہ بھائی، مجھے تو چٹا ہیرو چاہیے، کالی تو میں خود ہی بہت ہوں، نازلی نے اپنی ہی دھن میں چلتے ہوئے کہا تو سامنے سے آتا ایمان اس کی بے باک بات سن کر حیران رہ گیا۔ جب آج وہ ایشی مشی کو لینے آیا تھا، کیونکہ حنان منگنی کی خوشی میں سب کو ایک ریسٹورینٹ میں پارٹی دے رہا تھا، اور یہ پارٹی اتنے ٹائم بعد ایمان نے کیسے لی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ السلام علیکم بھائی! نازلین کی بات پہ ایشی مشی دونوں ہنس رہی تھی۔ جب ان کی نظر سامنے سے آتے ایمان پہ گئی تو دونوں نے سلام کیا۔ ان کے سلام پہ نازلین نے چونک کر ایمان کو دیکھا۔ دل ہی دل میں اپنی بات پہ وہ شرمندہ ہو گئی، مگر سامنے ظاہر نہیں کیا، اور ایمان کو ایسے اگنور کیا جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ ایمان نے بھی اسے ویسے ہی اگنور کیا اور ایشی مشی کو ساتھ چلنے کا کہا۔ اوہ، میں تو تم لوگوں کو بتانا بھول گئی، خازق بھائی کے رشتے کے لیے سارا آپی کے ماما پاپا نے ہاں کر دی ہے، اور نیکسٹ ویک ہم بھائی کی منگنی کریں گے۔ میں ماما کے ساتھ آپ لوگوں کو انوائٹ کرنے آؤں گی، اور ہم تینوں شاپنگ اکٹھی کریں گے، تیار رہنا۔ جیسے ہی وہ دونوں نازلی کو بائے کہہ کر ایمان کے ساتھ جانے لگی، کچھ یاد آنے پر نازلی فوراً مڑی اور جوش سے بولی، جبکہ اس کی بات پہ ایشی کو 420 واٹ کا جھٹکا لگا، اور مشی نے بھی اس کی بات سن کر جھٹکے سے ایشی کو دیکھا، جس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ سارا آپی کا رشتہ ذاک بھائی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہم مشی جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ ہوش میں آتے ہی مشی نے کچھ بولنا چاہا، جبکہ ایمان کو وقت پہ کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو جلدی سے اس نے مشی کی بات کاٹی اور اسے پکڑتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا، جبکہ ایشی ابھی تک بت بنی کھڑی تھی اور نازلی ایمان کے ایسے رویے پہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایمان نے ایشی کو بھی گاڑی میں بٹھایا اور نازلی کو اللہ حافظ کہتا خود گاڑی لے گیا۔ بے مروت کھڑوس جنگلی دیو، اتنا بھی نہ ہوا جھوٹے منہ ہی لفٹ کی آفر کر دیتا۔ دیکھ، میں بھی دیکھ بھی رہا تھا، ابھی تک میری گاڑی نہیں آئی، اب میں معصوم خوبصورت لڑکی روڈ پہ کھڑی اچھی لگوں گی کیا؟ نازلی نے غصے سے ایمان کی گاڑی کو گھوڑا جو روڈ پہ بہت آگے جا چکی تھی، پھر فٹ پاتھ پہ ہی بیٹھتے غصے میں بڑبڑانے لگی تو اندر سے آواز آئی، اگر وہ آفق آتا تو سچ میں بیٹھ بھی جاتی۔ ضمیر کی آواز پہ نازلی نے پہلو بدلا اور گاڑی کو والے کو کوسنے لگی جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ بھائی، آپ نے مجھے پوچھنے کیوں نہیں دیا؟ جب گاڑی روڈ پہ آ گئی تو مشی ایمان کی طرف مڑتے ہوئے بولی، جبکہ ایشی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ کیا پوچھتی تو مجھ سے؟ ایمان نے الٹا سوال کیا۔ یہی کہ سارا آپی کا رشتہ تو حمدان بھائی سے ہونا تھا، پھر خازق بھائی سے انہوں نے کیسے کر دیا؟ مشی منہ بنا کر بولی تو ایمان نے گہرا سانس لیا۔ مشی، وہ بات صرف ہمارے گھر ہوئی تھی، زری یعنی اور بڑے پاپا اس کا رشتہ لے کر نہیں گئے تھے، اور ویسے تو منو کا رشتہ بھی زنبیل سے ہونا تھا نا۔ ایمان نے اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی تو مشی برے برے منہ بنا کر ایشی کو دیکھنے لگی، جو ایسے بیٹھی تھی جیسے یہاں ہو ہی نہ۔ اس کی شکل دیکھ کے مشی کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ صدمے میں ہے یا غصے میں، مگر سچ تو یہ تھا کہ اس کو پہلی بار اتنا خاموش دیکھ کر مشی بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، السلام علیکم۔ نازلی جیسی گھر پہنچی، سامنے زری، ریا اور رشی دروازے
में खड़ी जाने की इजाज़त मांग रही थी। नाज़ली ने सलाम किया तो सीनू ने उसे मुस्कुरा कर देखा और सलाम का जवाब देती मुस्कुरा कर मिली। ओके बेटा, ख्याल रखना अपना, हम फिर आएंगे। अच्छा बरीरा बच्चे, अल्लाह हाफिज। रिया ने मुस्कुरा के कहा तो बरीरा भी मुस्कुराने लगी, मगर नाज़ली इन सब की ऐसी हंसी से बहुत हैरान हो रही थी। मामा क्या बात है, ये लोग क्यों आई थी? इनके जाने के बाद नाज़ली बरीरा के साथ अंदर आई तो बरीरा मुसलसल मुस्कुरा रही थी। जब नाज़ली ने मशकूक नज़रों से उससे देखा और सवाल किया तो बरीरा के लब एकदम खामोश हुए। वो हम आज हाजिक की मंगनी की डेट फिक्स कर आए हैं ना, अगले इतवार की, तो बस इसी सिलसिले में इनसे बात हो रही थी। बरीरा ने बात को संभालते हुए कहा, ओ वाह मामा, अब हम कब जाएंगे इसी मिशी के घर? इन्हें पहले लाना है ना, तो शॉपिंग भी इनके साथ करूंगी। नाज़ली पुरजोश होकर बोली तो इसकी बात का और मतलब समझ के बरीरा मुस्कुराने लगी और वो इसकी जल्दी को कोई और ही रंग दे रही थी, जो अगर नाज़ली को पता चल जाती तो तूफान आ जाना था। हाँ हाँ ज़रूर चलेंगे, तुम फिलहाल कपड़े बदल लो और आके खाना खाओ। बरीरा ने कहा तो नाज़ली भी जी अच्छा कहती मुस्कुरा कर चली गई। तो बरीरा ने उसे हमेशा खुश रहने की दुआ दी।